जो भी लोग बगैर मास्क के फिर रहे हैं उन लोगों को काउंसलिंग करके पहली बार वार्न करके पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये पूरा रमज़ान का इलाका है, इफ्तारी के लिए सब बाहर आ रहे हैं, तो मेवा लेने के लिए तकरीबन सब बाहर आ रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। टीआरएस के कारदा सदर और रियासती वजीर बल्दी नजरस के.टी. रामाराव ने आज शहरियों से अपील की कि वो आइंदा 10 हफ्तों तक हर इतवार को सुबह 10 बजे से 10 मिनट के लिए घर की साफ सफाई पर तवज्जो दे ताकि घरों से मच्छरों का सफाया हो जा सके। उन्होंने कहा कि घरों में नालियों और मोरियों में भी पानी जमा होने ना दिया जाए, बर्तनों को भी खाने के फौरी बाद धो दिया जाए। प्रगति भवन में के.टी. रामाराव ने खुद आज साफ सफाई करते हुए रस्मी तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि रियासती वजीर बल्दी नजरस के.टी. रामाराव की हिदायत पर रियासती वज़रा, हैदराबाद के मेयर, डिप्टी मेयर, जिला कलेक्टरों और बल्दियतदारों ने भी इस मुहिम का अपने अपने घरों में आगाज किया। वज़ीर साहब ने 15 दिन 15 मिनट की बात की थी, अब के.टी. रामाराव ने 10 दिन 10 मिनट और 10 बजे की बात की है। आखिर ये माजरा क्या है? ఒకవైపు ప్రపంచం మొత్తం కూడా కరోనా మీద యుద్ధం చేస్తున్న నేపథ్యంలో మనందరి దృష్టి కూడా కరోనా మీద ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వర్షాకాలం సమీపిస్తుండడం, ఈ తరుణంలో మళ్ళీ రకరకాల అంటువ్యాధులు కూడా ముఖ్యంగా దోమల వల్ల వ్యాప్తి చెందే అంటువ్యాధులు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందులో మనం గతంలో చూసినట్టయితే, మన అనుభవం చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా డెంగ్యూ కానీ, చికెన్ గున్యా కానీ, మలేరియా కానీ, ఫైలేరియా కానీ, ఇవన్నీ కూడా జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా దోమల నుంచే మనకు సంక్రమించే వ్యాధులు. మరి దోమల నివారణ కోసం ఒకవైపు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ, రాష్ట్రంలోని 141 మున్సిపాలిటీల్లో ఆయా కార్పొరేషన్లలో, ఆయా మున్సిపాలిటీలలో మున్సిపల్ సిబ్బంది, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది వారి శక్తి వంచన లేకుండా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే మనం సమాజంలో మన రాష్ట్రాన్ని, మన నగరాలని కాపాడుకునే క్రమంలో, మన పిల్లల్ని కాపాడుకునే క్రమంలో, మన కుటుంబాలని కాపాడుకునే క్రమంలో, మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకునే క్రమంలో ఈ దోమల నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి అంటే, దోమల బెడత తగ్గాలి అంటే మన ఇంట్లో ఎక్కడైతే నీళ్లు నిల్వ ఉండే ప్రదేశాలు ఉంటాయో, అవి మన ఇంట్లో ఉండే పూల కుండీలు కానీ, లేదా ఇతరత్ర ఏమైనా మనం వాడకుండా పక్కన పెట్టిన పాత సామాన్లు కానీ, టైర్లు కానీ, లేదా మన ఇంట్లో ఉండే ఎయిర్ కూలర్లు కానీ, ఇవన్నింటినీ ప్రతి వారం ఒకసారి 10 నిమిషాల పాటు మీ సమయం తీసుకొని ఖాళీ చేసి అందులో దోమలకు నిల్వ ఉండకుండా, స్థానం లేకుండా చేసినట్టయితే ఈ వ్యాధి నుంచి కొంత తప్పించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, దోమల నుంచి కూడా తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకి ఒక 10 నిమిషాల పాటు అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ప్రయత్నం చేసి మరి ఈ దోమలను ముఖ్యంగా మీ మున్సిపాలిటీలు, మీ కార్పొరేషన్లు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు తోడ్పాటునిస్తూ, వారికి కూడా మీ మద్దతునిస్తూ ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనాలని కోరుతూ ఈరోజే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. కానీ 10 వారాల పాటు ప్రతి ఆదివారం 10 నిమిషాల పాటు ఈ కార్యక్రమం చేసినట్టయితే మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి నిపుణులు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, ఎంటమాలజీ నిపుణులు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి వారికి సహకరిద్దాం, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం, ప్రజారోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకుందాం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज कारवान बल्दी डिवीजन में कोविड-19 के सबब लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों में राशन तकसीम किया। उन्होंने लाजमी खिदमत अंजाम देने वालों की सिताइश की और आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहें। मुकामी टीआरएस कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया था। दियागुड़ा में कारपोरेटर साहब की जानिब से और मित्रा एसोसिएशन साहब की जानिब से यहाँ गरीब लोगों को कपड़े बांटे गए और ख़ास तौर से जो आशा वर्कर्स और जो जीएचएम्स के एम्प्लॉइज है और दूसरे जो लोगों को है, हमारे मित्रा कृष्णा साहब मित्रा एसोसिएशन की जानिब से कपड़े तकसीम किए गए और अनाज भी तकसीम किया गया। हमारे जीवन सिंह साहब यहाँ के इंचार्ज और हमारे भाई साहब जायसवाल साहब यहाँ मौजूद है, स्वरूप साहब, अभिषेक साहब, ये सब मिलकर बहुत अच्छा काम किए। ये कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बहुत बड़े परेशान हैं। हमारे सीएम साहब ने बहुत मदद की है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक वाहिद सीएम साहब केसीआर साहब है जिन्होंने 2 महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया गया है। उसके साथ 2 महीने में 3000 रुपये उनके अकाउंट में जमा किए गए। हमारे तेलंगाना में 87 लाख राशन होल्डर्स हैं, उनको जो है मौका फराम किया गया। उसी के साथ साथ जिसके पास राशन कार्ड नहीं है
उन्हें भी सीएम साहब ने काफ़ी मदद की है। जो अदर स्टेट से जो लोग आए थे उन्हें वापस भिजाने के लिए सीएम साहब ने 4 करोड़ रुपये रेलवे डिपार्टमेंट में जमा किया, ट्रेनों के जरिए उन्हें वापस भिजा रहे हैं। हमारे आज मित्रा कृष्णा साहब जो यहाँ के कारपोरेटर हैं, उन्होंने काफ़ी हज़ारों लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं। और जो लोग सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, आशा वर्कर्स है और जो जीएचएमसी के वर्कर्स हैं, उन्हें कपड़े भी दिए जा रहे हैं। ये कोरोना वायरस बड़ा डेंजर वायरस है, अगर इसे कंट्रोल करना है ये किसी के हाथ में नहीं है, ये ना सीएम साहब के हाथ में है ना पीएम साहब के हाथ में, अगर ये है तो आवाम के हाथ में। इसलिए आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि आप घर से बाहर मत लीजिए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कम से कम आप 5 फीट दूर ठहरिए। एक दूसरे से जब कभी कहीं मुलाकात का मौका आता है तो किसी से हाथ मत मिलाइए। और जब भी जो मौका मिले, एक बार भी आप बाहर जाकर आए तो दिन में 10 बार अपने हाथ साबुन से धोइए। सैनिटाइज इसके पास है तो सैनिटाइज हमेशा इस्तेमाल करिए, जेब में रखिए, ताकि जहाँ तक हो सके इस कोरोना वायरस से बचना है तो हम खुद कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना वो हमारे हाथ में है। सीएम साहब बहुत सी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन मुसलसल चलता रहा, अभी जो कुछ स्टेट में मुकम्मल जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ छोड़ दिया गया है, ऑरेंज जोन के अंदर कुछ पाबंदी है, रेड जोन के अंदर मुकम्मल पाबंदी है। इसलिए हैदराबाद रेड जोन में आता है और बहुत बड़ा थिक पॉपुलेशन है। हम हैदराबाद के तमाम भाइयों से और सभी भाइयों से अपील करते हैं, ये कोरोना वायरस बार बार रिपीट भी हो रहा है, सारे दुनिया के लोग परेशान हैं, फिर भी हिंदुस्तान में ऊपर वाले का फजल है, हमारी हुकूमतों की कोशिश की वजह से खासतौर से तेलंगाना में काफ़ी इसमें कम लोगों की मौत हुई है। और जो भी बीमार हो रहे हैं 98% वो सेहतमंद भी होते जा रहे हैं। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह कोरोना को रोकने के लिए सख्ती करते हुए लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रही है, हुकूमत के जो इकदाम है उसको रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस के ज़रिए। आवाम से गुजारिश करता हूँ कि पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, इस कोरोना वायरस से नजात हासिल करने के लिए हमेशा जितना एहतियात हो सके उतना एहतियात कीजिए। और ख़ासतौर से मैं मित्र कृष्णा साहब का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी लोगों को अनाज तकसीम किया, कपड़े तकसीम किए। इंसान वही होता है जो दूसरों की सेवा करता है, उसी को इंसान कहते हैं। वो इंसानियत यहाँ के कारपोरेटर उनके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों में है, उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया का भी शुक्रिया। कोरोना वायरस के चलते मौके में शहर की तरफ से मादाना पेट के तरकारी फरोशों का थर्मल टेस्ट किया गया। नीज मार्केट को आने वाले लोगों को भी थर्मल टेस्ट के बाद ही मार्केट में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव की हिमा पर अपने घर में साफ सफाई की मुहिम चलाई। मारेटपल्ली की उनकी रिहायशगाह की सफाई के काम में उनके अरकान खानदान ने भी उनका हाथ बटाया। टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव की हिमा पर वजीर स्पोर्ट्स और एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने बंजारा हिल में अपनी सरकारी रिहायशगाह में साफ सफाई की। उनकी बीवी, बेटी और नवासी ने भी सफाई के इस काम में हिस्सा लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने लॉकडाउन के बाद तेलंगाना में फंसे हुए झारखंड के माइग्रेंट लेबर्स के लिए 3 खुसूसी बसों का इंतजाम किया। सदर सिटी शोबे अखिलियत समीर वलीउल्लाह और यूथ लीडर अरहाम आदिल ने बैरूनी मजदूरों को बसों में सवार होने से कबल राशन पानी के अलावा रोजेदारों के लिए सहरी का भी इंतजाम किया। मल्लेपल्ली में स्क्रैप के गोदाम में आज मुहिब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हबीबनगर पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर वाक़े इस गोदाम में कंप्रेसर भी फट पड़ा, जिसकी वजह से पूरा इलाका दहल गया। लोगों में खौफ और सरासमगी फैल गई। 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट हादसे का सबब हो सकता है। पुलिस हबीबनगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। साहब मेरी शॉप स्क्रैप की है, स्क्रैप शॉप में मेरी जो है ना आंच लग गई। कैसा लगी मेरे को इत्तला नहीं है। मेरे बाजू वाले जो है ना पड़ोसी शकील भाई की जो बिल्डिंग है, शकील भाई वगैरह जो पड़ोसी आसपास के लोग हैं, वो लोग इमीडिएटली फ़ोन करे। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ते पढ़ते इमीडिएट उठ के आया। शटर खोलने के बाद जो है ना उतनी आँच नहीं फैली थी, थोड़ी सी लग रही थी। पानी की कोशिश करे, पानी का इंतजाम कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास। यहाँ पे कोशिश करे, पाइप फूटे हुआ निकला, ये निकला। पुलिस का भाई पुलिस जो है ना, मैं आने के बाद एक 10 मिनट के बाद जाके पीएस पे जो है ना कंप्लेन दे के आया तो हाँ बोल रहे बोल के 10 से 15 मिनट के बाद पुलिस भी आ गई था। पुलिस का भी कोऑपरेशन बहुत है हमारे लिए, और सब में ज्यादा हमारे पड़ोसियों का बहुत कोऑपरेशन है साहब हमारे साथ। पुलिस वाले आमने सामने वाले कोऑपरेशन करे, पड़ोसियाँ कोऑपरेशन करे। बहुत सारे कॉल्स आए साहब मेरे को इमीडिएट। जैसा आने के बाद यहाँ ठहरने के बाद भी तकरीबन 25 से 30 कॉल्स लोग करते गए कंटिन्यू। नुकसान कितने का अंदाजा? नुकसान साहब 5 से 6 लाख रुपए के ऊपर का ही नुकसान हुआ साहब। सामने हुआ किसी को जानी नुकसान है? जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी नहीं हुआ साहब। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है साहब। रियासती वजीर स्पोर्ट्स व एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने आज
लाल बहादुर स्टेडियम में स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वालों में लीमू तकसीम किए ताकि उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिल सके। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने इतवार को स्वीट लीमो डे मनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदनशीन रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी ए वेंकटेश्वर रेड्डी, सदनशीन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भूपति रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारी पुलिस शराब की खरीदी के लिए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत देती है और शराब की दुकानात पर खुद लोगों की कतारें बनाने के काम में जुड़ जाती है, लेकिन घर के लिए राशन के लिए बाहर निकलने वालों को हिरासत किया जाता है और उनकी बाइक भी जब्त कर ली जाती है। साथ में खवातीन के होने पर भी उनका कोई पास और लिहाज नहीं किया जाता। कल रात मुरादनगर में ही एक ऐसा वाकया देखा गया जहां सब इंस्पेक्टर ने एक नौजवान जोड़े को जो राशन लेकर जा रहा था उसकी बाइक जब्त करने की कोशिश की। मुकामी लोगों के पुरजोर एहतजाज पर पुलिस सब इंस्पेक्टर वहां से फरार हो गया। मगर सवाल यह है कि आखिर पुलिस की हिरासनी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। वज़ीर अखलाक महमूद अली, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के कहने के बावजूद पुलिस का ऐसा रवैया इस बात को साबित करता है कि पुलिस पर इन दोनों की अब गिरफ्त बाकी नहीं रही। लॉकडाउन के चलते रियासत के सरकारी दवाखानों में आम मरीजों के इलाज व मुआवजे का निजाम ठप होकर रह गया है। हामिला खवातीन को सख्त तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दवाखाने का इंतजामिया हामिला खवातीन को शरीक करना तो छोड़िए, उन्हें देखने तक के लिए तैयार नहीं है। खातून समाजी जहदकार शीबा ने आज मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुर्ज में कई मरीजों से बातचीत की और सवाल किया कि ऐसे वक्त में उनके अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं, वो अवाम खासतौर पर हामिला खवातीन की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा कि वोट लेने के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवार घर घर तो जाते हैं और इंतखाबात के बाद जब आवाम को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो खुद घरों में बंद हो जाते हैं। तो जब भी आपके बच्चे को ऐसा तकलीफ हो रही है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, आप एक सिटीजन से पहली चीज़ तो यहाँ पर कोई भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी नहीं रहते। हम सब सारे कौन है पहले? पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन पूरे हम लोग सिटीजन से पहले आप कौन है बताएंगे तो पहले हिंदुस्तान के हैं ना, हिंदुस्तान के। हाँ, तो हिंदुस्तान के जितने भी आवाम हैं, अगर कुछ भी तकलीफ होता है तो पहले लोकल जितने भी आप वोटर्स देते हैं ना, वोटिंग जब भी देते हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी होती है ये कि जो वोट आप मांगने के लिए इनके घर तक पहुंचते हैं, इनके हर तकलीफ में साथ देते हैं, इसी के लिए आप वोट मांगते हैं। मगर यहाँ पर तो प्रेग्नेंट वुमेन है, MIM पार्टी को वोट देते बोल के बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना कुछ भी इनको इंजेक्शन देने के लिए भी हमारी ज़रूरत पड़ रही है, एक सिटीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? वोट्स देने का कारण क्या है? ऐसे लीडरशिप्स को आप रख के क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर है और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर वो अकेले बोल के नहीं, बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स इस तरह से तकलीफ में आ रहे हैं। इनका अभी कोविड-19 जैसा जानलेवा बीमारियों में वो लोग कितना दूर दूर से आ रहे हैं। अभी हम लोग इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्या बोले? मैं आपको अंदर जाने के बाद बताइए, एडमिट करते बोले, हाँ एडमिट नहीं करते बोल रहे, एडमिट नहीं करते बोल के भी बोल रहे। आप थोड़ा मास्क निकाल के बोलिए। हाँ क्या बोले आपको? एडमिट नहीं करते बोले, इंजेक्शन भी नहीं देते बोले ना, छिड़कियाँ देकर हकाल भी नहीं देते बोले। हाँ, तो इस तरह से पेशेंट को देखने जाने के बाद ये लोग बोलते हैं हम निकलते, ठीक है हम जाते बोल के निकलते तो पीछे से हमारे को ढकलते हैं लोग और बोलते हैं 2000 दो, 2000 देना। कौन मांगते हैं आपको 2000? वही अंदर है सो लोग। कौन अंदर? डॉक्टर मांगते हैं? नहीं डॉक्टर नहीं मांगते। फिर कौन मांगते? वो जो है ना लोग, वो लोग वॉचमैन वगैरह जो लाके बच्चों को डालती वो ये नर्स वगैरह रहते वो लोग मांग के तंग करते। तो मैं बोली हमसे जो हुआ वो ले, नहीं वो लोग नहीं लेना चाह रहे वैसा, इतने खुशी से जो दिए वो ले लेना। तो बच्चे को लाते हम बाहर, नहीं तो बैठो। यहाँ पर देखिए इतना आवाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे जितने भी आवाम है ये सारे लोग कौन है? हमारे पूरे सिटीजन्स है। इन लोग को इतना तकलीफ हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज डिजाइन करके हम लीडरशिप मेंटेन कर रहे बोल के बोल रहे थे। इसका मतलब क्या है? समझने के लिए कितने सालों से अंदर कितने सालों से हम लोग तड़प रहे हैं ऐसा सिटीजन्स। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज इसको सीरियस नोट नहीं लेकर, हेल्थ मिनिस्टर्स नोट नहीं लेकर ये रिलीफ क्यों नहीं दे रहे पब्लिक को? क्या गरीब गरीब ही रहेगा हमेशा? क्या गरीब हमेशा यही तकलीफ से गुजरते रहेंगे? चले जाओ वार्ड में। इस तरह से इंडियन सिटीजन को रेस्पेक्ट नहीं है, कहाँ पर भी जाएंगे तो ये किसके वोट्स मांग रहे हैं आप आकर?
यही ये सिला है कि आपको वोट्स देकर आपको पॉलिटिशियन बनाने का? गरीब लोगों को डरा के धमका के ये सब कुछ करके क्या मिलने वाले आपको बताइए? ये देश की गुलामी अभी तक नहीं गई है। ब्रिटिश के ज़माने में देश की गुलामी तब चले गई है, वो देश का गुलामी चले गई है, मगर देशवासियों का जो गुलामी है वो नहीं गई है। ये आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज डिज़ाइन करके हम लोग को बता रहे हर पल की डर डर के जियो यहाँ पर बोल के। ये हर चीज़ अभी से नहीं होगा। पूरे आवाम जितने भी है, मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, आप जिसको वोट्स डालते हैं, आपके लोकल लीडर्स जितने भी है, कितने पार्टियों को आप पॉलिटिकल लीडर्स का आप रखते हैं, वोट्स देते हैं आप, वो इसी के लिए है, आपके लिए कि आपकी मदद करें। समझे? आप आवाज़ उठाना है, आप पूछना है। कोई भी आपको गुंडागर्दी कोई भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे बोल के क्यों डर रहे हैं आप लोग? कोई बोलने के लिए क्यों डर रहे हैं? अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो रहा है तो आप बताइए, जाइए आप जहाँ पर वोट डाले हैं आप। समझे? तो अम्मा अभी आपको इंजेक्शन दिए हैं, डॉक्टर दिए हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से जाइए। कुछ भी तकलीफ होगा हमारा भी कांटेक्ट नंबर दीजिए। आपके एरिया के MIM पार्टी के जो भी लीडर्स है उनके पास आप कल ही जाइए, बोलिए इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं, वो बात करेंगे यहाँ पर। समझे? आप आपके फ़ोन नंबर्स भी हमको दे के रखिए, ठीक है? जय हिंद। शराब की दुकानात बंद हो जाने की अफवाहों के बाद कल शहर में शराब की दुकानात पर अचानक भीड़ उमड़ आई। चुनाचे दुकानात के मालिकान को पुलिस को तलब करना पड़ा। बताया जाता है कि तमिलनाडु में समाजी फासले की खिलाफ वर्जी के बशमूल मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर अदालत ने हुकूमत को तमाम 3880 शराब की दुकानात बंद करने के अहकाम दिए थे और ये इत्तला व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो गई। इसी तरह डायरेक्टर एक्साइज सरफराज अहमद ने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। रियासती हुकूमत ने शराब की दुकानात को बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया है और न ही ऑनलाइन शराब फरोख्त करने के बारे में कोई गौर व खौज किया गया है। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने वजीर बल्दी नजर KT रामाराव की हिदायत पर अपने घर और यूसुफगढ़ा इलाके में साफ सफाई की मुहिम चलाई। हिंदुस्तानी बहरिया ने मालदीव से जुमला 698 हिंदुस्तानियों का तखलिया करवाया जो आज सुबह कोचीन के बंदरगाह को पहुंच गए। ऑपरेशन समंदर सेतु के तहत हिंदुस्तानी बहरिया ने बैरूनी मुल्कों में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को लाने की मुहिम शुरू की है। पैसेंजर कार्गो से लक्षद्वीप से भी 121 अफराद कोची के करीब मटनचेरी टाउन को पहुंचे। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक 698 हिंदुस्तानियों को जिन्हें मालदीव से लाया गया उनमें 595 मर्द, 103 खवातीन और 10 साल की उम्र के 14 बच्चे शामिल हैं। इनमें 19 हामिला खवातीन भी शामिल थी। 440 का ताल्लुक केरला से है, 156 का ताल्लुक तमिलनाडु से है, जबकि दूसरे माबाकी रियासतों के रहने वाले हैं। अरुणाचलम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एन सोमासन ने बताया कि तमिलनाडु के रहने वालों को बस के जरिए उनकी रियासतों को रवाना कर दिया जाएगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक केरला के रहने वालों को उनके आबाई अजला को जाने से पहले 14 दिन क्वारंटाइन में गुजारने होंगे। उसूल के मुताबिक अगर किसी में कोविड-19 के अलामत पाए जाते हैं तो उन्हें रास्त तौर पर कोविड हॉस्पिटल को भेज दिया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल पीर 11 मई को दोपहर 3 बजे तमाम रियासती चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के आगाज से अब तक चीफ मिनिस्टरों के साथ ये 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कोरोना वायरस के 3277 नए केसेस की इत्तलात के बाद मुतासरीन की तादाद 62,939 हो गई है, जबकि 2019 अफराद फौत हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में शामिल हैं। दुनिया भर के 187 ममालिक में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 40,38,000 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी ने दुनिया भर में 2,78,631 अफराद को लुक़्मे अजल बना लिया है। अमेरिका में 13 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और मजमूई तौर पर 77,178 अफराद इस मर्ज की वजह से फौत हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 5 मजदूर उस वक्त हलाक हो गए जब एक लारी जिसमें वो सफर कर रहे थे कल रात उलट गई। इस हादसे में 11 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जिला कलेक्टर नरसिंहपुर ने बताया कि ये मजदूर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के शहर आगरा जा रहे थे कि हादसा पेश आया।
हमारे मुल्क भारत में ब्लैक मनी और रिश्वत सतानी वगैरह के नारों के साथ बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने बड़ी चमत्कारी अंदाज में सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन साथ ही ये बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है कि ये जीत ऐसी मशकूक बनकर सामने आई है कि अभी भी सारे मुल्क में रिश्वत सतानी का काला बाजार ज़बरदस्त गर्म है और इसे लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम का भी कुछ ख्याल नहीं है। अभी रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर की जानिब से सत्ता संभालने के फौरन बाद खास तौर पर महकमा पुलिस की तनख्वाहों को दोबाला कर देने के बावजूद भी पैदाइशी आदतों पर काबू पाना मुश्किल साबित हुआ है। जिस तरह से अतर के कारोबारी को खुशबू और बदबू में रहने वालों को बदबू ही रास आती है, उसी तरह ढेरों रिश्वत सतानी के मामलात के चलते एक मामला आज सोशल मीडिया में भी महकमा पुलिस का कैद हो गया है। हुआ यूं कि लॉकडाउन के चलते जगह जगह महकमा पुलिस के दस्तों की तानियाती के बावजूद एक जगह एक ऑटो वाले को 2 पुलिस ओहदेदारों ने सारे कागजात और पासेस वगैरह की चेकिंग के बावजूद भी उसे रिश्वत देने के लिए मजबूर कर दिया और उसे कबूल करते हुए सोशल मीडिया के कैमरे में कैद भी हो गए। और इस खबर के नशर होने तक इसकी इत्तला डायनामिक सिटी पुलिस कमिश्नर माने जाने वाले अंजनी कुमार तक भी पहुंच गई और उन्होंने फौरन अहकाम जारी करते हुए उनके चेहरे छुपे रहने के बावजूद भी उनकी जानकारी लेते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया। हालांकि सरकारी नौकर को कोई भी निकाल नहीं सकता है, फिर भी इनकी शिनाख्त अफजलगंज पुलिस स्टेशन की ब्लू कॉल से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस कांस्टेबल 7723 डीपी मुकेश और PC 4398 बी सुरेश के हैसियत से की गई है। यही नहीं, अपने ओहदेदारों को हद से ज़ायद छूट देने पर इंस्पेक्टर अफजलगंज को भी चार्ज मेमो दिया गया है। अब पता नहीं सारी रियासत के महकमा पुलिस में ऐसी कितनी काली भीड़ें घुसकर महकमा पुलिस को बदनाम करने के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मिंदा करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। इसकी जांच अब जरूरी हो गई है। शहर हैदराबाद की वेस्ट जोन टास्क फोर्स के ओहदेदारों ने आज अचानक हरकत में आते हुए हबीबनगर पुलिस हुदूद में घुसकर इफ्तारी के लिए फ्रूट्स खरीदने वालों पर धावा बोल दिया और सोशल डिस्टेंस की पामाली और बिना मास्क के चार्जेस लगाकर सभी को गिरफ्तार किया और काउंसलिंग के लिए उन्हें मुतालिका पुलिस स्टेशन से रुजू करवा दिया। ये काम तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन ऐसे मौके पर किया जबकि शराब की खरीदी की लाइनों में इसकी पामाली जबरदस्त अंदाज में नजर आई है। गोश्त के दाम सारे माहौल में आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और तो और सारे ही दवाखानों में अलानिया दीगर बीमारों से जबरदस्त बेइतनाई बढ़ती जा रही है, इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल जय हो भारत की, जय हो यहाँ की डेमोक्रेसी की, जय हो रियासत तेलंगाना की और जय हो तेलंगाना टास्क फोर्स की भी। हुकूमत तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर की जानिब से तेलंगाना के कोविड-19 वायरस की जानकारी आज के ताज़ा बुलेटिन में इस तरह से हासिल हुई है कि आज GHMC हुदूद से 26 बशमूल 7 माइग्रेंट लेबर्स के जुमला 33 कंफर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इस तरह से इनकी जुमला तादाद अभी 1196 तक पहुंच गई है, जबकि आज किसी को डिस्चार्ज भी नहीं किया गया। वैसे ताहाल मुबैना कोरोना पॉजिटिव केसेस में 30 लोगों की अमवात हुई है और इस तरह से माहौल में अब ये बात मजबूत होती जा रही है कि शायद ये हालात साल तक ऐसे ही खींचे जा सकते हैं और लोगों को आने वाले वक्तों में अभी अपनी अपनी जिंदगियों की हैयत बदलनी जरूरी हो गई है। शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन माहौल के चलते चारों तरफ बंद के दौरान आज हबीबनगर पुलिस हुदूद में वाक़े तैयबा होटल के मुल्हका एक पान के डब्बे को लूट लेने की खबर दी गई है। बतलाया गया है कि उस डब्बे की तोड़फोड़ की इत्तला उसके कारोबारी को मिली और उसके वहां पहुंचने पर इस चोरी की जानकारी हासिल हुई और वहां पर लगाए गए एक CCTV कैमरा में अलानिया ये भी नजर आया कि 2 लोग बड़े इत्मीनान से सुनसान माहौल में इस डब्बे को लूट कर फरार होते देखे गए हैं। नुकसान का अंदाजा 1.5 लाख तक बतलाया गया है। वाज़ेह है कि महकमा पुलिस बहुत दिनों से लॉकडाउन में सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंस के चक्कर में रह गई है और ऐसे बड़े बड़े मामलात पर किसी की तवज्जो जा ही नहीं रही है। हो सकता है कि लॉकडाउन में सिगरेट, गुटखा, पान वगैरह के महंगे दामों की वजह से ये चोरी की गई हो। अगर ऐसा है तो आगे भी दूसरी जगहों पर ऐसी चोरियां मुमकिन हो सकती हैं।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के 75% मरीज दमे का शिकार हैं और ऐसे मरीजों को उन्होंने मशवरा दिया कि वह घरों में ही रहें। अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब कोविड-19 के साथ ही हमें जिंदगी गुजारना होगा। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन्स को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। दिल्ली में 6,923 के मुंजमला 2,072 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 73 अफराद फौत हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने आवाम से अपील की कि वह लॉकडाउन पर अमल पैरा रहें और 3 खास बातों का ख्याल रखें। पहली ये कि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए, दूसरा मास्क को अपने लिए लाजमी कर लिया जाए, तीसरा साफ सफाई पर खास तवज्जो दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने बैरूनी मजदूरों से अपील की कि वो नकल मकानी के इरादे को तर्क कर दें, क्योंकि हालात बहुत जल्द बेहतर होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि लोग नकल मकानी के लिए पैदल निकल जा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सबको नमस्कार। 1.5 महीने तक लॉकडाउन के बाद आज से केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ छूट दी है। पूरे देश को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में काफ़ी रियायतें हैं, ऑरेंज जोन में थोड़ी कम हैं और रेड जोन में काफ़ी कम रियायतें दी गई हैं। हम सब जानते हैं कि पूरी दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन में रखा है और दिल्ली के लिए रेड जोन के लिए काफ़ी कम रियायतें दी गई हैं कि दिल्ली के अंदर ये चीज़ें अलाउड हैं और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से उसके इतर कोई नहीं जा सकता। कोई सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के इतर नहीं जा सकती। तो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से जो केंद्र सरकार ने अलाउ किया, हमने आज से दिल्ली में वो सारी गतिविधियां अलाउ की हैं। कुछ किस्म की दुकानें खुल सकती हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स। मार्केट्स अलाउड नहीं है, मॉल्स अलाउड नहीं है, मार्केट कॉम्प्लेक्स अलाउड नहीं है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ कुछ खुल सकते हैं, कुछ तरह की दुकानें रेजिडेंशियल एरिया में कुछ दुकानें खुल सकती हैं। उसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं, टेक्नीशियंस हैं, आया है, इस किस्म के लोग जो हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं, वो लोग काम कर सकते हैं। इस तरह की कुछ रियायतें हैं जो मैंने कल आपको डिटेल में बताई थी जो खुल सकती हैं। अब हमें धीरे धीरे किस तरह से कोरोना को हराना है। कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा। और दिल्ली के लोगों ने आज तक बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। सबसे बड़ा काम तो पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था जब डेंगू को हराया था। 2015 में डेंगू के 16,000 केस हुए थे, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और पिछले साल आप लोगों ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगू को हराया था। पिछले साल 1,500 केस हुए थे और एक भी मौत नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। गजब का काम करके दिखाया था आपने। अब हमें कोरोना को हराना है। ज़िंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना, ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा। कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन ख़त्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं। अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज़ शुरू की जाएगी। तो अगर दिल्ली के लोग डेंगू को हरा सकते हैं, पूरी दुनिया डेंगू के सामने झुक गई थी, आप लोगों ने हराया था, तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। हर हालत में मास्क पहन के रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ मास्क जरूर पहनो। ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ लोगों ने इनका ख्याल रखा वहाँ पे लोग बच गए। और तीसरी चीज़, अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे।
आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा, ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा, और हम दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने, अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा? आपकी ज़िंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूँ, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूँ। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।